گناہوں سے نجات، متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت۔ سب پڑھیں۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ آمین۔ فرشتے نے یوسف سے کہا اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام رکھنا یسوع۔ خداوند یسوع مسیح نام نہیں ہے، مسیح نام نہیں ہے، خداوند بھی نام نہیں ہے۔ نام کیا ہے؟ بولیے کیا نام ہے؟ تو نام یسوع ہے، خداوند اس کی خصوصیت ہے اور مسیح اس کا لقب ہے، لیکن نام کیا ہے؟ بولیے کیا نام ہے؟ فرشتے نے کہا یوسف سے تو اس کا نام یسوع رکھنا، اور آگے بتایا بھی کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ پس منظر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ فرشتے نے کہا تھا۔ اب یسوع نام جو اوریجنل لینگویج ہے بائبل کی، نیو ٹیسٹمنٹ کی، وہاں جو یسوع کی لفظ ہے وہ ہے یشو، ہیبرو میں بھی یشو ہے، اور زبانداری کی وجہ سے بعض لوگ جیسا بول سکتے ویسا بولتے ہیں، ہم یسوع کہتے ہیں، انڈیا کے لوگ بھی بعض لوگ یشو کہتے ہیں، اور جو اسپینش ہے وہ ہیسوس کہتے ہیں، تو جیسا وہ بول سکتے ہیں، لیکن نام یسوع۔ اور اردو والے ہم جو پنجابی والے ہیں، اصل جو ہیبرو نام ہے اس کے زیادہ قریب ہے، وہ یشو۔ اس زبان میں ہماری زبان میں یسوع ملتا جلتا ہے۔ یہ زبانوں میں ہوتا ہے ایسا کہ بہت سے لفظ ایک زبان کے دوسری زبان میں نہیں بولے جا سکتے۔ تو یسوع، یہ لفظ یسوع جو ہے اس کے معنی ہے نجات دینے والا۔ یسوع کے معنی کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں پوری توجہ سے میرے ہر سوال کا جواب دینا ہے۔ یسوع کا مطلب کیا ہے؟ اور فرشتے نے کہا وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اب نجات کے معنی بھی دیکھ لیں۔ نجات، چھٹکارا، خلاصی، مخلصی، رہائی، جان چھوٹ جانا۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا شکر ہے ایس بیماری کو تو نجات ملی، کبھی سنا آپ نے؟ کبھی یہ بھی سنا ہوگا شکر ہے دشمن کو تمہیں نجات ملی۔ نجات کا مطلب چھٹکارا، خلاصی، رہائی، لیکن فرشتے نے کہا گناہوں سے نجات۔ اگرچہ یسوع مسیح بیماریوں سے بھی نجات دیتا ہے، پریشانیوں سے بھی نجات دیتا ہے، ہمارے مسئلوں سے بھی ہمیں نجات دیتا ہے، لیکن یسوع کے آنے کا مقصد جو فرشتے نے یوسف کو بتایا وہ یہ تھا، گناہوں سے نجات دے گا، گناہوں سے چھٹکارا دے گا، گناہوں سے خلاصی دے گا، گناہوں کو یکسر ختم کر دے گا۔ 3 اتوار ہوئے میں تقریباً میرا ایک جیسا مضمون ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے اتوار خصوصاً میں نے پانی کے بپتسمے، روح القدس کے بپتسمے کی بات کرنی ہے، اور یہ ایک گراؤنڈ تیار ہونا ہے۔ تو گناہوں سے نجات، اب سنیے غور سے، گناہوں سے نجات ساری دنیا کو اس کی ضرورت ہے۔ ایک گناہ جو میرا ہے، آپ کھڑے ہو ذرا، فرض کریں میں نے بھائی ہارون کے خلاف کوئی بات کی، برا بھلا بولا، گالیاں دی اور ناجائز باتیں ان کے ساتھ کی، تو میں نے ان کا گناہ کیا، تو مجھے کس سے معافی مانگنی ہے؟ ان سے۔ ہارون بھائی سوری، تھینک یو۔ لیکن گناہ جو ہے مجموعی طور سے یہ خدا کا گناہ ہے، کیونکہ خدا نے مخلوق انسان کو خلق کیا، اور خدا کا انسان نے گناہ کیا، آدم نے گناہ کیا، ہم آدم کی نسل سے ہیں، اس لیے ہم اپنے سارے گناہوں کی معافی صرف یسوع مسیح سے مانگ سکتے ہیں، خداوند سے مانگتے ہیں، کیونکہ ہم نے خداوند کا گناہ کیا ہے۔ آدم نے کس کا گناہ کیا تھا؟ کس نے منع کیا تھا کہ درخت کا پھل نہ کھانا جو گناہ ہے؟ کس نے منع کیا تھا؟ نافرمانی کس نے کی؟ تو گناہ
गुनाह किसने किया? तो आदम के गुनाह की वजह से सारी दुनिया लानती हो गई, सारी दुनिया गुनहगार हो गई। और आप कह सकते हैं, कोई भी लोग कहते हैं, मैंने सुना है, वो कहते हैं यार आदम ने गुनाह किया, मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या गुनाह किया? आपने सुना होगा कभी? आप आदम की नस्ल से हैं, आदम का खून है, ठीक है? तो आदम के गुनाह की वजह से सारी दुनिया गुनहगार हो गई। कभी आपने ये भी सुना होगा कि सारी दुनिया चांदनी चली गई, पाकिस्तान वाले पीछे ही है, कभी सुना आपने? वो यार दुनिया चांदनी चली गई, तेरे वाले मैट्रिक नहीं हुई। किस किस ने ये बात सुनी है? जिसने सुनी हाथ खड़ा करे कि दुनिया चांदनी चली गई, तू वाले मैट्रिक भी नहीं की थी। दुनिया कब गई है? दुनिया तो सारी नीचे ही है। 3 आदमी गए थे 1969 में, वो 3 आदमी पूरी दुनिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं और हम कहते पूरी दुनिया चले गई। इंसान चले गए, 3 इंसान चले गए, हम कहते पूरी दुनिया। वो 3 आदमी सारी दुनिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जब 3 आदमी सारी दुनिया की नुमाइंदगी करते हैं और हम कहते हैं सारी दुनिया जानते चली गई है, ऐसे ही एक आदमी के गुनाह करने से सारी दुनिया गुनहगार हो गई। अब आपको समझ आ गई कि नहीं? जिसको नहीं समझ आई अपना हाथ खड़ा करें। आ गई? मुझे बड़ी खुशी है कि आपको इस बात की समझ आ गई। तो आदम के गुनाह की वजह से सारी दुनिया लानत के नीचे, गुनहगार बदी के नीचे। एक शख्स के गुनाह करने से, अच्छा बहुत से लोग ये भी मान लेते हैं, सुनिए थोड़ी सी आवाज बढ़ेगी, मेरा गला ठीक नहीं है। बहुत से लोग, मैंने जैसे कहा, वो ये कहते हैं जी मैं क्यों होते गुनाह, नताशा को जगाएं प्लीज, सब जागे। बहुत से लोग, जैसे मैंने पहले इधर रखे, जैसे मैंने पहले कहा, कहते जी आदम ने गुनाह किया, मैंने तो नहीं किया। उसकी तो आपको समझ आ गई? समझ आ गई कि आदम नुमाइंदगी करते हम सब गुनहगार। तो कुछ लोग कहते चलो जी ठीक है, मान लिया जी आदम के गुनाह से हम गुनहगार बने। वो कहते हैं एक यीशु के खून बहाने से सारी दुनिया कैसे ईमान ला सकती है, सारी दुनिया कैसे निजात पा सकती है। ये तो बड़ी आसानी से मान लेते हैं, आदम की वजह से गुनहगार हुए, और ये मानने में बड़ा उज़र पेश करते हैं कि एक आदमी यीशु के कफारे से सारी दुनिया कैसे गुनाह उनके माफ हो सकते हैं, कैसे निजात पा सकती है। अगर ये असूल है मैथमेटिक्स का, सुने, 2 जमा 2 बराबर 4, ये असूल है। अगर ये असूल है, अगर आदम के गुनाह के बाइस सारी दुनिया गुनहगार बन सकती है, तो यीशु के कफारे के बाइस सारी दुनिया खस्ताहाल कर सकती है। तालियां बजा दें यीशु मसीह के लिए, बोले हालेलुया। पढ़िए रोमियो 5वां बाब उसकी 19वीं आयत, यहाँ लिखा है, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग, यानी सारी दुनिया गुनहगार ठहरे, उसी तरह एक ही शख्स यानी यीशु की फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। बोले हालेलुया। बहुत से है तो दरवाजा सबके लिए, लेकिन बहुत से का मतलब है बाकी ठीक है। बहुत से लोग निजात पालेंगे और बाकी नहीं पाएंगे क्योंकि वो यीशु को रद्द करेंगे, लेकिन निजात का रास्ता सबके लिए है। यीशु जिस तरह आदम की वजह से सारी दुनिया गुनहगार हुई, वैसे यीशु के कफारे से सारी दुनिया के गुनाह मुक्ति पा सकती है, सारी दुनिया में निजात पा सकती है। विश्व के कबूल किया, बोले हालेलुया। मुझे पौलुस रसूल की ये बात बहुत अच्छी लगती है। जब वो मसीह पर ईमान लाया, उसे निजात पाई, बड़ी खूबसूरत बात उसने कही। देखिए जरा, हैरत होती है। पौलुस बड़ी दिलेरी से, बड़े वसूख से एक ऐलान करता है। वो कहता है ये बात हर तरह से सच, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है। वो क्या कहते हैं, जरा सब बोलिए, ये बात सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक है। कौन सी? कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए आया। बोले हालेलुया। ऐसा खूबसूरत ऐलान है। वो कहते हैं इसमें शक नहीं है, ये सच्चाई की बात है और हर तरह से कबूल करने के लायक है। कोई इसकी जिद
जितनी मर्जी मुखालफत कर दे, साबित है कि सिर्फ यीशु नाम से निजात दे सकता है, कोई और क्यों नहीं दे सकता? यशायाह क्यों नहीं? क्योंकि यशायाह ने खून नहीं बहाया, यशायाह ने आपकी निजात नहीं दी। कहते हैं कि एक फादर था, उसके हाथों में जख्मों के निशान थे, उसके पाँव में भी जख्मों के निशान थे। शायद नाम मुझे भूल गया, और है फादर पीरो शायद उसका नाम है। और मंगल के दिन कैथोलिक चर्च में ये जो है वहाँ पे एपिसोड पे वहाँ खास उसके नाम से इबादत होती है। और भाई हाथों में निशान तो है, पाँव में भी होंगे, शायद पसली में भी हों, लेकिन क्या उसने आपके लिए खून बहाया? बोलिए, क्या उसने आपके लिए खून बहाया? बोलिए। तो जिसने आपके लिए खून नहीं बहाया वो आपका निजात देता नहीं हो सकता। हालेलुया। सिर्फ यीशु गुनहगारों को निजात दे सकता है। और पौलुस ने जो ये बात कही है, मैंने इसका आधा हिस्सा या सामने नहीं लिखा, अगला हिस्सा ये है, वो कहते हैं सबूत। पौलुस कहता है ये बात सच है, और आगे क्या, हर तरह से कबूल करने के लायक है कि यीशु मसीह गुनहगारों को निजात देने के लिए आया। और अगला हिस्सा जो सामने नहीं है पूरी आयत का, वो ये है, सबसे बड़ा सबूत पौलुस कहता है मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं, और अब मैं गुनहगार नहीं हूं। जरा तालियां बजा दें पौलुस के लिए। सबूत, सबसे बड़ा सबूत कहते हैं मैं हूं। और जिन्होंने तौबा की, हेलो, मैंने आपसे कहा था हाथ खड़ा करें, उस वक्त कहा था जिन्होंने बपतिस्मा लिया, आप इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। और सबूत कौन है? आपके मैं सबूत हूं। कहिए, मैं सबूत हूं, मेरे गुनाह बख्शे गए हैं, मेरे गुनाह ढांपे गए हैं, मैंने नई पैदाइश पाई है, मैं निजात याफ्ता हो गया हूं, मुझे निजात मिल गई है। तालियां बजाइए यीशु मसीह के जनाब के लिए। यीशु मसीह ने अगरचे सलीब पर चढ़कर निजात का काम मुकम्मल किया। यीशु ने, मेरा जुमला दोहराइए, यीशु ने, बोलिए, यीशु ने सलीब पर चढ़कर निजात का काम मुकम्मल किया। क्योंकि जब वो सलीब पे चढ़ा तो उसका अपना खून बहाया और फिर काम तमाम हुआ, निजात का काम तमाम हुआ। लेकिन सलीब पर चढ़ने से पहले यीशु मसीह ने मुख्तलिफ तरीकों से साबित कर दिया था कि गुनाहों से निजात देने वाला मैं ही हूं। चंद मिसालें आपने पहले भी सुनी होगी। पहली मिसाल, एक मफलूज जिसको 4 आदमी उठा के लाए थे, यीशु ने कहा बेटा तेरे गुनाह, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। और ये मरकस की इंजील उसके दूसरे बाब में है, मत्ती के 9 बाब में है, और लूका के 5वें बाब में है। मफलूज से कहा तेरे गुनाह माफ हुए। इसका मतलब है यीशु गुनाह माफ कर सकता है, निजात दे सकता है। यीशु निजात देता है, बोले हालेलुया। फिर एक औरत जो ऐन गुनाह के वक्त पकड़ी गई, यूहन्ना 8वें बाब में लिखा है। एक औरत ऐन गुनाह करते वक्त पकड़ी गई, यीशु के पास लेके आए, कहने लगे मूसा की शरीयत कहती है कि ऐसी औरत को पत्थर मारे जाएं। हालांकि ये भी लिखा हुआ शरीयत में लिखा कि जो पकड़े जाए दोनों, जो ज़िनाकार है, लड़का लड़की हो या आदमी औरत हो, दोनों को पकड़ा जाए, दोनों को संसार किया जाए। वो एक औरत को ले आए, यीशु ने कहा जिसने गुनाह नहीं किया वो पत्थर मारे। किसी ने पत्थर नहीं मारा, और जो पत्थर उसको मारने के लिए आए थे सब भाग गए। फिर यीशु ने कहा तुझ पे किसी ने हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा नहीं। यीशु ने कहा जा बेटी तेरे गुनाह माफ हुए, फिर गुनाह ना करना। तालियां बजाएं मेरे मसीहा के लिए। निजात के लिए आया। तीसरी मिसाल, एक शख्स ज़काई, आप खुद इसकी मिसाल हैं भाई। एक बार आप मिसाल है, आप मिसाल है, आप है, लेकिन मैं बाइबल में से चंद मिसालें पेश कर रहा हूं। ज़काई नाम का एक शख्स बड़ा बदकार था, गुनहगार था, अपने यहूदी कौम के उल्ट चलता था और यहूदियों से नाजायज टैक्स लेकर रोमी हुकूमत को देता था, और जितना जायज था
ज्यादा लेता था। टैक्स कलेक्टर्स का ऑफिसर था ये सब एक टैक्स कलेक्टर था, बहुत बड़ा, और गुनाह से भरा हुआ था। एक दिन उसने सुना, आप सुने मेरी बात, एक बार जरा हाथ ऊंचे, दोनों हाथ ऊंचे कीजिए, जरा हाथ में रख के कहिए यीशु मसीह की, जोर से यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। ज़कई ने सुना कि वो शख्स जो नासरत का रहने वाला है, जिसकी पैदाइश में फरिश्ते ने कहा था यूसुफ से उसके बेटा होगा, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, वो हमारे शहर में से गुजर रहा है, वो इस इलाके में है। ज़कई भागा हुआ आया, उसने शायद एक औरत जो एक गुनाह में पकड़ी हुई थी वो वाकया सुना हो, शायद उसने मफलूज का वाकया सुना हो, उसने और बहुत से सुने हो। उसने कहा मैं उसको मिलूंगा, मैं उसको मिलना चाहता हूँ, वो जो गुनाह माफ करता है, जो नजात देता है, जो नजात देता बन गया है, मैं उसको मिलूंगा। वो भागा हुआ गया, पब्लिक बहुत ज्यादा थी, पब्लिक में वो चूंकि कान छोटा था इसलिए वो किसी तक नहीं पहुंच सकता था, वो भागा हुआ आगे गया, दरख्त पे चढ़ गया और यीशु मसीह ने कहा नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर में जाना जरूर है। यीशु उसके घर चला गया और ज़कई को अपने अंदर कायलियत हुई, एहसास जुर्म हुआ और वो सोचने लगा मैं गुनहगार हूँ, मैं नाजायज मुनाफा कमाता हूँ, मैं और भी मुझ में गुनाह होते हैं। उसने अपना सारा गुनाह मसीह के सामने पेश कर दिया। हालेलुया। अपनी कदम उठाया और यीशु से गुनाह की माफी मांगी और यीशु ने कहा आज इस घर में नजात आई है। तालियां बजाते हैं यीशु के लिए जोर से। आज इस घर में नजात आई है, यीशु आ गया, नजात आ गई। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं यीशु हमारे घर में है, नजात नहीं पाई तो नहीं आए वो आपके घर, नहीं है वो। ज़कई से उसने कहा आज इस घर में नजात आई है क्योंकि ये भी इब्राहिम का फर्जंद है, और ये भी कहा क्योंकि इब्ने आदम कोई वो को ढूंढने और नजात देने के लिए आए। पढ़ लीजिए लूका की इंजील उसका 19वां बाब उसकी 9वीं 10वीं आयत। यीशु ने उसे कहा आज इस घर में नजात आई है इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम सब इकट्ठे बोले क्योंकि इब्ने आदम कोई वो को ढूंढने और नजात देने के लिए आया। बोले हालेलुया। यीशु ने कहा मैं आया ही नजात देने के लिए। साथ साथ एक बात बताता जाऊं, मफलूज के बारे में सुना आपने, उसके गुनाहों का नहीं पता कितने गुनाह थे, लेकिन गुनहगार तो था। ऐन और जो ऐन गुनाह में पकड़ी गई थी उसका एक गुनाह तो सबको पता है, पता नहीं कितने और थे। ज़कई का एक गुनाह तो सबको पता है, नाजायज गुनाह था, लेकिन न जाने और कितने गुनाह थे। यीशु मसीह ने सबके गुनाह माफ कर दिए। आपसे कहना चाहता हूँ मत सोचे अगर आपने तौबा नहीं की, अगर नजात नहीं पाई, अगर पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, सुन लीजिए आंखें खोले प्लीज सब, अगर आपने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया तो इसका मतलब पानी का बपतिस्मा लेने से पहले शर्त है कि तौबा करें, अपने गुनाहों से माफी मांगे, निजात पाने के लिए यीशु से कहे ऐ यीशु मुझे निजात दे। और जब निजात मिल जाए तो पास्टर से कहे पास्टर जी मुझे बपतिस्मा दे। ये बाइबल का असूल है। और मैं कुछ मिसालें दे रहा था जिनके गुनाह यीशु ने माफ किए। आपको याद है 38 वर्ष से एक शख्स चारपाई में पड़ा था, यीशु उसके पास आया और यीशु ने उसको शिफा दी। किस किस को याद है? जो बैत हस्दा के हाउस के पास था उसको शिफा दी। शिफा देने के बाद क्या कहा? किसी को अगर याद हो ऊंची आवाज में बताया फिर गुनाह ना करना। इसका मतलब है शिफा उसने पाई और यीशु से कहा मेरे गुनाह माफ कर, उसने कहा माफ है लेकिन फिर गुनाह ना करना। इसका मतलब इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है, पावर है, कुदरत है। मैंने आपको ये जो वाक़या सुना दिए हैं इससे साबित हो गया है कि वही गुनहगारों को उनके गुनाहों से निजात देता है। पुराना नामा जो है
شریعت، موسوی شریعت، یہ عکس ہے نیا نامہ کا. Old Testament is the shadow of New Testament. جو کچھ پرانے عہد میں ہوتا تھا وہ نقل ہے، اصل مسیح کے بعد ہے. پرانے عہد میں گناہ معاف ہوتے تھے عارضی طور پہ 1 سال کے لیے، اور اس کے بعد دوبارہ قربانیوں کا سلسلہ تھا. احبار کی کتاب میں بہت سی قربانیوں کا ذکر ہے، اور شریعت کے مطابق ہر چیز خون سے پاک کی جاتی تھی. کمری کے بچے، کبوتر، بکری کا بچہ، اس طرح سے برا وہ ذبح کرتے تھے اپنے گناہوں کے لیے. لیکن سال بسال ہر سال جب ایک دفعہ قربانی دے دی پھر گناہ کرتے رہتے سر کہ چلو یار اگلے سال پھر قربانی دینا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ 1 سال گناہ کی قربانی کے لیے وہ برا سبا کر لیا، اس کے بعد سوچتے تھے یار پھر دیکھی جائے گی اگلے سال پھر قربانی دے دی. لیکن پڑھی سر عبرانیوں میں کلام ختم کرنے والا ہوں، آج میرا پیغام چھوٹا ہے. عبرانیوں 9:22 میں آیا کیا لکھا ہے؟ اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں. شریعت کے مطابق، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق، موسیٰ کی شریعت کے مطابق قربانیاں سے پاک کی جاتی ہے، اور بغیر خون بہائے گناہوں کی معافی نہیں ہوتی. اولڈ ٹیسٹمنٹ عکس ہے، لہٰذا نیا نامہ حقیقی قربانی ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، پرانے نامے میں، شریعت میں قربانیاں ایک نہیں بے شمار قربانیاں، ہر گناہ کی قربانی، لیکن سارے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے صرف ایک بننا ہے اور وہ یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. تو عکس کا اصل ہمارے پاس ہے. یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بات کر رہا ہوں. ایک دن یسوع کو دیکھا. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ پیچھے والے بتائیں کس کا نام لیا میں نے؟ اس کا میں کچھ لوگوں نے نہیں سنا. یوحنا بپتسمہ دینے والا ایک دن کھڑا تھا، اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا، اس کی طرف آ رہا تھا. تو یوحنا نے کیا کہا؟ دیکھیے یوحنا پہلا باب 29 ورس. دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لیا جاتا ہے، جو جہان کا گناہ اٹھا لیا جاتا ہے. میرا نہیں، صرف آپ کا نہیں، صرف آپ کا نہیں، صرف آپ کا نہیں، ساری دنیا کا گناہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے جائے گا. یہ یوحنا نے پیشن گوئی کر دی، اور آخر وہ وقت آ گیا، گڈ فرائیڈے جس کو آپ کہتے ہیں. آخر وقت آ گیا، یسوع صلیب پر چڑھ گیا اور اس نے ساری دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا. ہاللیلویا. کلام میں لکھے وہ آپ ہمارے گناہوں کو لے کے صلیب پہ چڑھ گیا. ہاللیلویا. اور ہماری قربانیوں سے ابدی خلاصی کرا دی. تو یوحنا کی پیشن گوئی پوری ہوئی. اور دیکھیے آپ پڑھ لیجیے پہلا پطرس 2:24 میں آئے. وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا. ہمارے گناہوں کو، آپ کے گناہوں کو، میرے گناہوں کو، ہم سب کے، پوری دنیا کے گناہوں کو وہ اپنے کندھے پہ لے کے صلیب پر چڑھ گیا. اور صلیب پر ایک بھاری بوجھ، صلیب کا وزن کم ہوگا، ساری دنیا کے گناہ وہ لے کر صلیب پر چڑھ گیا اور جا کر ہماری ابدی خلاصی کرا دی. ہاللیلویا. پڑھیے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے بڑھ کے راست بازی کے اعتبار سے جیے اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی. پریز دی لارڈ. یسوع مسیح، میں اینڈ کر رہا ہوں پیغام کا. کچھ نہ دینا، کراش کبھی کچلا جانے کا لفظ سنا آپ نے؟ مسل دینا، کچل دینا. کسی ٹریکٹر یا کسی بڑے ٹرالر کے نیچے کسی چیز کو رکھ دے، وہ کیا ہوگا؟ مسلی جائے گی، کچلی جائے گی. یسوع مسیح کچلا گیا. کیوں ہم پاکشاہ کی روٹی کھاتے ہیں؟ کس لیے؟ کیونکہ گندم کو پیس دیا جاتا ہے، یسوع کا بدن پیس دیا جاتا ہے، کچلا گیا.
ताकि आप शिफा पाएं, आपको निजात मिले। और अंगूरों का जब रस निकालते हैं उनको पीस दिया जाता है, आप ग्राइंड करके देखें, कुछ लोग कूट के निकालते हैं उसका जूस, कुछ ग्राइंड करते हैं, अंगूरों का नाम निशान खत्म होता है, उनका रस निकल आता है। यीशु मसीह का लहू आपके लिए बहाया गया, वो कुचला गया, उसके कंधे में भारी सलीब भी रखी गई, फिर उसकी पसली में भाला ये कोड़े मारे गए, उसकी कमर में कोड़े मारे गए, एक नहीं दो नहीं 40 कोड़े उसकी कमर पे मारे गए, उसके हाथों में कील के साथ उसके पांव में कील, साथ में कांटों का ताज, मुंह में थूका गया, दाढ़ी के बाल नोचे गए, बरहना बिल्कुल जिनके अलफ बरहना हालत में यीशु को सलीब दिया गया। आपकी खातर उसने शर्म नहीं बर्दाश्त की, उसने शर्म की परवाह नहीं की, मेरी खातर, ताकि आप निजात पालें। हालेलुया, ताकि मैं निजात पालूं, ताकि जो फरिश्ते ने कहा था कि उसने बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को गुनाहों से निजात देगा, ताकि ये बात पूरी हो जाए, यीशु सलीब पर अपने गुनाहों को लेके चल गया। हालेलुया। और सलीब पर जब सारा काम खत्म हुआ तो क्या कहा? इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ, निजात का काम मुकम्मल हो गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह जी उठा, जी उठने के बाद निजात का काम खत्म नहीं हो गया, खत्म नहीं हो गया। कितनों ने निजात पाई, कितनों ने पानी का बपतिस्मा लिया? हाथ खड़ा करें। अगर काम खत्म हो चुका होता तो आप कैसे निजात पानी पिलाएंगे? खत्म नहीं हुआ। ईद पेंतिकोस्त, अगले बात ईद पेंतिकोस्त है। ईद पेंतिकोस्त के मौके पे पतरस ने कहा, ऐ यहूदियों, तुम्हें बता देना चाहता हूं, वही यीशु जिसे तुमने मसलूब किया वो जिंदा है, आसमान पे है, और उसी के लहू के कबूल करने से दुनिया को गुनाहों से निजात मिलती है। और पतरस ने कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। पहले तौबा करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे, निजात पाए और बपतिस्मा ले। जब पतरस ने मुनादी की, 3000 लोग मसीह पर ईमान लाए। तालियां बजा दें। और ये काम अभी भी जारी है, ये काम अभी भी जारी है। जरा आखिरी स्लाइड पे आए, लास्ट में, ये काम अभी भी जारी है। आज यीशु मसीह के 12 शागिर्द वो तो यहां नहीं आए, यीशु खुद भी यहां नहीं है। खुदा के बेशुमार खादिम आपको कलाम सुनाते हैं, कहते हैं हम, मैंने तो यहाँ तक सुना है, हाथ जोड़ के मिन्नत करते हैं, यीशु को कबूल कर लो, यीशु को दिल दे दो, तौबा कर लो, निजात पालो, गुनाहों से आप मखलसी पालो, क्योंकि कोई गुनहगार आसमान पे नहीं जाएगा। पहले निजात पाए, फिर पानी का बपतिस्मा पाने के लिए तैयार हो जाए। देखिए वार्निंग, मैं कलाम खत्म कर रहा हूँ और ये आखिरी 2 स्लाइड्स। नेक्स्ट वो सेकंड लास्ट, ये वाला। आप हैरान होंगे, सब देखिए जरा, आप हैरान होंगे कि यही आयत इधर है, यही इधर है। लूका की इंजील 13वां बाब, ये तीसरी आयत है, और ये लूका की इंजील 13वां बाब 5वीं आयत है। दोनों तरफ एक ही आयत है। इसका मतलब इतनी अहम बात है कि यीशु ने 2 दफा कही। लूका 13वां बाब 3वीं आयत, और बोलिए, और 13वां बाब 3वीं आयत, 13वां बाब 5वीं आयत, एक ही बात है। पढ़िए क्या है? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह होगा। असल में यीशु मसीह के नाम सुना रहे थे। सुनिए वाक्य, लोगों से कह रहे थे तौबा कर लो, मैं निजात दे रहा हूं, मैं निजात देने आया हूं। तो किसी ने यीशु मसीह को आगे कहा, यीशु तुझे पता चला? अब आप भी सुनिए हैरत से। यीशु से कह रहे, यीशु तुझे पता है कि पिलातुस ने गलीलियों का कत्लेआम किया, उनका खून बहा दिया। वो कुर्बानी कर रहे थे अपने, ये यहूदी जो है गलीली, वो कुर्बानी दे रहे थे। तो पिलातुस
تو یسوع نے کہا ان کو چھوڑو، اگر تم توبہ نہ کرو گے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ گلیلیوں کا خون بہایا پطرس نے، یہ پلاطس نے پلاطس نے خون بہایا گلیلیوں کا، اور ان کا خون جو ہے گلیلیوں کا ان کی قربانیوں کے ساتھ شامل کر دیا۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو ایسے ہی رہو۔ دوسرا واقعہ، پھر کسی اور نے کہا یسوع وہ شلوخ ایک برج تھا وہ گر گیا، 18 آدمی اس کے نیچے دب کے مار گئے۔ یسوع نے کہا ان کو چھوڑو، اگر تم توبہ نہ کرو گے تو ایسے ہی کرو۔ ہلاکت، اگر نجات نہیں پائی تو ہلاکت ہے، توبہ نہیں کی ہلاکت ہے۔ بچے کا بپتسمہ کوئی بپتسمہ نہیں ہے، اگر نجات نہیں پائی توبہ نہیں کی ہلاک ہو جائیں گے۔ ادھر تو پتہ نہیں شاید آپ ہلاک ہو یا نہ ہو، ادھر تو پتہ نہیں کہ کچھ ہو نہ ہو، لیکن مرنے کے بعد جہنم میں جائیں گے۔ آج وقت ہے یسوع سے کہ اے یسوع میں گنہگار ہوں، آج میں توبہ کرتا ہوں۔ جنہوں نے توبہ کی اپنا ہاتھ کھڑا کریں، جنہوں نے نجات پائی، بپتسمہ لیا جنہوں نے پانی کا، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ آپ نے یہ دعا نہیں کرنی۔